Hi everyone. Good evening. Good evening everyone. Welcome to your personality development class. Hi everyone. Good evening. How are you all? I hope everybody is fine. Good evening. Good evening Anil Shekhawat. Good evening Jasbir Singh. Good evening Lucky Robin. Good evening Rekha. Good evening Poonam. Good evening everyone. Good evening Mukesh. I hope all of you are fine. Good evening Sangeeta. Good evening Sapna. Hi everyone. Hello. Good evening Harindra. Good evening Mr. Satish. Good evening Meghna. Good evening. Good evening Sapna. We are good, ma'am. I'm also good. I'm also good. Good evening, ma'am. My name is Nana. Good evening, Nana. I hope everybody is fine. What about you, ma'am? I'm absolutely wonderful. Absolutely fine. Absolutely wonderful. Good evening, Nisha. Good evening, Savita. Good evening. Let other people join in and then we'll start with today's session. Good evening, Sunny. Good evening, Anita. Good evening. What you all had for lunch today? Good evening, Poonam. Ma'am, my name is Mansi. Good evening, Mansi. Yes, ma'am, I'm fine. Wonderful. Hi, ma'am. Good evening. Good evening, Kamal. Good evening, everyone. I'm absolutely fine, Sunny. I'm doing absolutely great. Ma'am, my name is Bhumika. Good evening, Bhumika. Hi. I'm absolutely fine, Kamal. I hope everyone is fine at your home too, and you are also fine. A tasty lunch. Wow. What you had for lunch, Jasbir Singh? Hi, ma'am. Hi, Rita. Ma'am, what is today's topic? Surprise. थोड़ी देर में पता चलेगा. आज का mystery box लेकिन बहुत अच्छा है. आज का mystery box, today's mystery box is wonderful. Mudrika. Hi, Mudrika. Ma'am, what do you have in lunch? आज मैंने दाल चावल खाया with some raita. I had dal chawal with raita. Raita is my favorite. I love to have raita every day in my lunch. I'm Jigyasa. Hi, Jigyasa. Hi. So the numbers have almost reached to 30 and now we'll start. Should we start? Hi, Sobhana. Hi. Good evening, Vijay. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. So should we start the session? Should we start the session? Should we start the session? I want to see a lot of yes and then only I will start. Let's boost up our excitement for the day. Yes? Let's boost up our excitement for the day and then we'll start. I'm not seeing yes. Me too. Good. Hi. Okay. So I'm starting. I also love raita. So
what was your experience for the mystery box which I gave yesterday? Did you have you done the activity? आपने mystery box वाली activity करी थी? I am also electrified today. I am so enthusiastic. You know, I am also taking Shivangi ma'am's class and learning some new words like you. I am also making my mystery book. So you guys should also make mystery books. How was your experience with the activity? How was the experience with the activity, children? मेरे पास 3 बच्चों के पिक्चर्स भी आए एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने किया. कोई 1-2 लाइन में कोई बताएगा कि आपने क्या सीखा उस एक्टिविटी से? क्या सीखा आपने उस एक्टिविटी से बच्चों? Yes ma'am, very nice experience. Can you explain your experience in 1 or 2 lines, Kamal? Yes, I guess Dipanshi. Yes ma'am, I Dipanshi जो निशा गुप्ता के आईडी से हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिविटी करी थी. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के. द 2 ग्लासेस जसबीर सिंह भड़ाना के आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने भी किया है. I would definitely like to take the names of the kids. One is Arpita from 5th B. Arpita from 5th B. उन्होंने सेंड किया है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. दीपांशी फ्रॉम 8th A and there are 2 kids, मानसी एंड मानव, जिन्होंने फॉरवर्ड किया है. आप अगर आपने एक्टिविटी नहीं करी तो प्लीज़ करिए. और जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था अपना समर कैम्प के लिए, on the number on which you registered yourself for the summer camp, आपको उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करनी है अपनी इमेजेस. यस मैम, वी डू फर्स्ट वर्क एंड देन डांस. बिल्कुल सही बोला सपना आपने, दैट वी शुड डू इम्पॉर्टेंट वर्क फर्स्ट एंड देन द अदर वर्क्स. बहुत अच्छा. जसबीर सिंह भड़ाना, एकदम परफेक्ट आपने एक्सप्लेन किया है कि हमें हमेशा पहले अपने काम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको पहले करने चाहिए. दैट वाज द ओनली मिशन ऑफ द मिस्ट्री बॉक्स फॉर द डे 2 जो मैंने कल दिया था कि आपको पहले इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए एंड देन ओनली यू हैव टू गो फॉरवर्ड टू द अदर थिंग्स और योर हॉबीज. एंड किसने थैंक यू बोला था जो फर्स्ट डे का मिस्ट्री बॉक्स था? किसने थैंक यू बोला? अपने पेरेंट्स को, खाने को, पानी को थैंक यू बोला? किसी ने कंटिन्यू किया था मिस्ट्री बॉक्स फॉर डे 1? शोभाना सक्सेना, आपने सेंड किया है तो मेरे को मिल जाएगा. वंडरफुल शोभाना, सो प्राउड ऑफ यू दैट यू डिड द एक्टिविटी एंड आई होप जो लेसन मैं आपको देना चाहती थी वो भी आपने लेसन आपको मिला. भूमिका, वंडरफुल. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज का टॉपिक बहुत अच्छा है एंड आई ट्रूली बिलीव जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ देखेंगे आज का सेशन तो बहुत अच्छा होगा. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों के साथ आज का सेशन देखिए. अपने बच्चों के साथ देखिए आज का सेशन. आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का सेशन. मैं जिन बच्चों ने यू हैव डन 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला, वंडरफुल. आई एम सो हैप्पी कि किसी को याद भी है 4 क्वाड्रेंट फॉर्मूला. वाओ, बहुत अच्छी बात है. आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीवन. सो लेट्स स्किप टुडेज टॉपिक. चलें आज के टॉपिक पे. यस, नो, यहीं पे बैठे रहे. बताओ आप सब. नेक्स्ट टॉपिक पे चले. और प्लीज अगर पेरेंट्स यहाँ पे हैं अपने बच्चों के साथ तो प्लीज अपने बच्चों के साथ आज का सेशन देखिए. आज का सेशन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट विल ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज इनटू द रिलेशनशिप ऑफ अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट. जो एक बच्चे के साथ अपना पेरेंट का रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत चेंजेस आएंगे. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आज वो सेशन देखिए अपने बच्चों के साथ. द किड्स विल लर्न अ लॉट टुडे. द पेरेंट्स, आई होप मैं पेरेंट्स के साथ भी कुछ सिखा पाऊँ उन्हें. So yes, I am starting with today's session.
तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, करें स्टार्ट? थोड़े और यस ले हो, यस 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 यस, एक्साइटेड? एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? यस, ओके। आज के टॉपिक के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं सबकी एक्साइटमेंट जगा रही हूँ बैठ के। आई एम इग्नाइटिंग द एक्साइटमेंट इन एवरीवन। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है हमारा, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस होता क्या है, हम ये जानेंगे कि व्हाट इज दिस स्ट्रेस, हमें उसको मैनेज कैसे करना चाहिए, एंड व्हाट कैन स्ट्रेस डू, व्हाट हार्म कैन स्ट्रेस डू इन आवर लाइफ्स, व्हाट हार्म कैन स्ट्रेस डू। स्ट्रेस मतलब चिंता। चिंता हमारी लाइफ में कितना हार्मफुल हो सकती है, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यस, लेट्स बिगिन। स्ट्रेस इज नथिंग, लेकिन एक टाइप ऑफ हमारा एक नेगेटिव ओपिनियन है, एक नेगेटिव फीलिंग है हमारी। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज अब कमेंट करना बंद कर दीजिए एंड लेट अब सेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑल द पेरेंट्स, ऑल द किड्स, now please let's focus on today's session. It's quite important, the topic is very important. Yes, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, स्ट्रेस एक तो होता है स्ट्रेस कि आपने काम किया, यू वर्कड अ लॉट टुडे, फिजिकली आपने बहुत काम किया, आप यहाँ गए, आप वहाँ गए, आपकी बॉडी थक गई। सो दैट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज नोन एज फिजिकल स्ट्रेस, दैट इज नोन एज फिजिकल स्ट्रेस। एक होता है मेंटल स्ट्रेस। अब ये मेंटल स्ट्रेस आता कहाँ से है? मेंटल स्ट्रेस आता है जब कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई फ्रेंड, सपोज ए और बी दोनों फ्रेंड्स है, और ए के मार्क्स बी से ज़्यादा आते हैं, ए के मार्क्स बी से ज़्यादा आते हैं, तो बी के ऊपर एक हल्का सा मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए, why am I lagging behind? So that is also a stress, that is also a mental stress. Parents कभी कभी इनडायरेक्टली अपने बच्चों के अंदर, डायरेक्टली नहीं करते, कभी किसी पेरेंट का, बच्चों ये वाली बात सुनो, ऑल द किड्स लिसन, द पेरेंट्स आर योर बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। पेरेंट्स का कभी मोटिव नहीं होता आपको स्ट्रेस देने का, लेकिन पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग है ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग इज मेड टू मेक मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। ठीक है, अब पेरेंट्स कभी कभी इनडायरेक्टली भी बच्चों को स्ट्रेस दे देते हैं कि बच्चों अगर आप ना 80% मार्क्स ले आओ ना बेटा, मैं आपको बाइक दिलाऊंगा या मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, बेटा अगर आप 80% मार्क्स ले आए तो मैं आपको डॉल हाउस दिलाऊंगी। ऐसा होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि इतने % मार्क्स ले आओ तो मैं ये दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगी, होता है ना ऐसा। सो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट स्ट्रेस। कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमको कंपेयर करने लग जाते हैं हमारे फ्रेंड से, कभी हमारे पेरेंट्स हमको कंपेयर करने लग जाते हैं हमारे फ्रेंड से कि आपका और आपका फ्रेंड तो सेम क्लास में पढ़ते हैं, आपको और आपका फ्रेंड सेम टीचर पढ़ाती है, सेम ट्यूशन में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन दैट यू आर नॉट एबल टू स्कोर द सेम लेवल ऑफ मार्क्स दैट योर फ्रेंड इज एबल टू स्कोर? डज दिस हैपन टू यू ऑल द किड्स और नॉट? कमेंट येस और नो। आपके साथ होता है कभी ऐसा? होता है ना? तो हेयर देयर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। अब स्ट्रेस की वजह से, अगर आप स्ट्रेस ले लो, मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगी आपको, प्लीज़ मेरे साथ बनिए रहिए, आज का मिस्ट्री बॉक्स भी बहुत अच्छा है। तो अब स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमें बचपन में ये नहीं सिखाया जाता कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, हमें ये सिखा दिया जाता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है, ये सिखाया जाता है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया होता कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाए किसी से, अगर हमारे यहाँ पे हम अपने आप को नेगेटिव फील करने लगे, अगर हमें ऐसा लगने लगे
कि मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो उस चीज़ से मैं कैसे डील करूं, ये तो कभी किसी स्कूल में सिखाया ही नहीं, कभी नहीं सिखाया। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेस लेने से व्हाट हैपन्स व्हेन यू टेक स्ट्रेस, व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी व्हेन यू टेक स्ट्रेस। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सपोज करो आप, मैं इस ग्लास ऑफ वाटर को ऐसे पकड़ के 5 मिनट, मैंने 5 मिनट इस ग्लास ऑफ वाटर को ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो मेरे आर्म में मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो मेरे हाथ में क्या इफेक्ट आएगा उन 5 मिनट में? कुछ इतना फर्क नहीं आएगा, मुझे इतना कुछ फील नहीं होगा कि ग्लास इतना हैवी है, इतना कुछ, आई वोंट बी फीलिंग सच टाइप ऑफ अ थिंग, राइट। अगर सपोज मैं इसी पोजीशन में 1 घंटे तक ऐसा ग्लास पकड़ के खड़ी रहूं, what will happen if I will be holding this glass in the same position for continuous 1 hour? तब I will be feeling a bit ache on my shoulder, थोड़ा सा लगेगा ना यहाँ पे, थोड़ा सा I will be like मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, my hand is paining. And can you imagine what will happen if I will be holding this glass of water in the same direction, in the same position for continuous 24 hours? For continuous 24 hours अगर मैं ऐसे पकड़ के खड़ी रहूँ तो क्या होगा? मे बी ऐसा हो सकता है मेरा ये वाला हाथ पैरालाइज हो जाए, मे बी ऐसा, क्योंकि मेरा हाथ सुन पड़ जाएगा, नम हो जाएगा, माई हैंड विल टर्न नम, द ब्लड सर्कुलेशन विल स्टॉप, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? मेरे को अगर पता होता कि, मेरे को ये तो पता है कि अगर मैं ऐसे कर करके खड़ी रहूँ, देखो मैंने अभी कितने बात करते करते ही आई हैव स्टार्टेड फीलिंग पेन इन माई हैंड। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि मैं ग्लास नीचे रख दूँ। इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि मैं ग्लास नीचे रख दूँ। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि अगर आप स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को अपने दिमाग में रखेंगे तो शायद 5 मिनट आपको फील नहीं होगा, 5 मिनट इतना फील नहीं होगा आपको कि मैंने स्ट्रेस लिया, थोड़ा सा कंपेयर करने लग गया है कि दैट फ्रेंड ऑफ माइन इज वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू शर्ट एंड आई एम नॉट वेयरिंग इट, व्हाई एम आई नॉट वेयरिंग इट? मेरे मम्मी पापा ने तो दिलाया नहीं। दैट फ्रेंड ऑफ माइन शी इज राइडिंग स्विफ्ट डिजायर एंड आई हैव वैगनआर, तो ऐसा क्यों? मेरे पापा ने स्विफ्ट डिजायर क्यों नहीं ली? तो 5 मिनट कंपेयर करने में, 5 मिनट आप जब कंपेयर करेंगे अपने आप को तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू वोंट बी फीलिंग अ मेजर डिफरेंस इन योर थॉट्स, इतना आपकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला 1 घंटे तक अगर मैं पकड़ू, यू विल फील अ बिट पेन, सो दैट इज, अगर आप 1 घंटे तक एक चिंता को लेके बैठे रहेंगे, 1 घंटे तक स्ट्रेस लेते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा हेडेक होने लगेगा, थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगेगा, थोड़ा सा यहाँ दर्द होने लगेगा। मम्मी को बोलोगे मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। कुछ चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में। एंड देन व्हाट विल हैपन इज, जब आपने 24 घंटे तक जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका एक टाइम पे ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि आपको बेड से उठने का ही दिल नहीं करेगा। यू विल फील सो लेथार्जिक, का मतलब लेजी होता है। एंड आपका माइंड एक नेगेटिव हार्मोन क्रिएट करने लग जाएगा। जब आप चिंता करने लगते हैं आपके बॉडी के अंदर एक नेगेटिव हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ऑल द मेजर डिजीजेस हैपन। और उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज अ नेगेटिव हार्मोन इन योर बॉडी। अगर वो सिक्रीट होने लग जाता है, वो किससे सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में? स्ट्रेस से। किससे सिक्रीट होता है? स्ट्रेस से। वो उसी से स्ट्रेस से ही वो सिक्रीट होता है, ठीक है। तो जब अब मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेस नीचे रख दिया, तो क्या हुआ? मेरी टेंशन खत्म हो गई। तो अब आप सोचिए, अगर सिर्फ एक पानी का ग्लास नीचे रखने से मेरे हाथ का दर्द ठीक हो सकता है, तो सपोज करो अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता है, यू हैव, पेरेंट्स शुड ऑलवेज मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देयर चाइल्ड। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, जो चीज़ आपके लिए बहुत छोटी होती है, दैट इज क्वाइट बिग फॉर द किड्स, so you should always maintain 1-to-1 connection with your kid.
कभी रात को रोज कभी बैठिए अपने बच्चों के साथ और उनसे पूछिए बेटा हाउ वाज योर डे। कभी कभी हम जब बड़े हो जाते हैं, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे से दैट आई डोंट हैव अ गुड कनेक्शन विद माई चाइल्ड, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो देयर इज अ बिट ऑफ लैकिंग कि शायद कभी आपने अपने बच्चों को टाइम ना दिया हो, सो दैट्स व्हाई दे हैव मेड इट अ हैबिट कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा, उनको ऐसा लगता लगा हो कि मेरे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देते हैं। सो समवेयर और द अदर कभी कभी पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ का। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट दिस इज द हार्श रियलिटी दैट दिस हैपन्स। द नेम ऑफ द नेगेटिव हार्मोन इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज द नेगेटिव हार्मोन। लेकिन अब बारी आती है कि अब हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे इस एक मूवी से। अभी बड़ी एक अच्छी मूवी आई थी लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम पे बहुत अच्छी मूवी आई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। इवन मैंने अपने मम्मी पापा को भी भेजा था कि मम्मी पापा आप देख के आओ मूवी, उनकी एनिवर्सरी थी, मैंने उनको भेजा था। और उस मूवी का नाम था छिछोरे। किस किसने छिछोरे देखी है? किस किसने छिछोरे मूवी देखी है? मेरे को उसके सारे कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। किस किसने छिछोरे देखी है? तभी हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे अगर आप सबने छिछोरे देखी होगी, नहीं तो विल मूव ऑन टू सम अदर एग्जाम्पल। ठीक है, आप बताओ येस और नो में कि किस किसने देखी है, किस किसने नहीं देखी छिछोरे। हाँ, आज सुबह आ रही थी स्टार गोल्ड पे आज सुबह स्टार गोल्ड पे आ रही थी। लेट मी गेट अ लॉट ऑफ येस फॉर द मूवी। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तभी हम इस टॉपिक पे आगे चलेंगे, नहीं तो हम इस टॉपिक पे आगे इस एग्जाम्पल पे आगे चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे इस एग्जाम्पल को लेके, क्योंकि मैं चाहती हूँ सबने वो मूवी देखी हो और तभी हम उससे कुछ सीख पाए। हम लोग मूवी तो देख लेते हैं, हम ताली बजा लेते हैं उन एक्टर्स के लिए हम ताली बजा लेते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन उससे सीख के कुछ नहीं आते। हम 300-400 रुपए खर्च कर देते हैं उस मूवी को देखने के लिए, उस पॉपकॉर्न खाने के लिए। मोर देन 1000 रुपीज पर पर्सन वी स्पेंड इन द मूवी हॉल एंड देन वी रियलाइज, लेकिन हम कुछ लर्न करके नहीं आते हैं उस मूवी से। ठीक है, कोई बात नहीं। देर आर आई गेस देर इज अ 50% ऑफ द पीपल, दोज हु हैव सीन एंड दोज हु हैव नॉट सीन। तो मैं एक ऐसे सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगी ताकि आपको भी समझ आए। ठीक है, ताकि आपको भी समझ आए व्हाट आई वांट टू से। छिछोरे मूवी में एक बच्चा होता है 12th स्टैंडर्ड का, जिसने IIT का पेपर देना होता है। IIT के अंदर जाने के लिए, एडमिशन के लिए पेपर दिया होता है और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। ठीक है, इतना समझ आया। लेकिन क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है एंड वो बहुत मेहनत करता है अपने रिजल्ट के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब रिजल्ट आया, ही फाउंड दैट कि वो फेल हो गया। उसका बेटा, दैट किड, वो फेल हो जाता है अपने एग्जाम में। एंड व्हाट हैपेंस इज वो एक गलत स्टेप उठा लेता है जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। और उसके पेरेंट ने उसके जो फादर था, ही यूज्ड टू प्लान कि बेटा पेपर दे लो, उसके बाद हम घूमने चलेंगे, बेटा आप पेपर दे लो, उसके बाद हम पार्टी करेंगे। तो उसने उसको एक स्ट्रेस के वे में ले लिया था। उस बच्चे ने उसको एक स्ट्रेस के वे में ले लिया था कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, वो कितना ट्रस्ट करते हैं कि वो मेरे लिए हॉलीडे प्लान कर रहे हैं कि तो मैं तो कर ही लूँगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो बच्चा फेल हो जाता है उस पेपर में और वो एक गलत स्टेप उठा लेता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर उसका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा होता तो वो गलत स्टेप कभी नहीं उठाता, वो उनसे बात करता, वो उनसे काउंसिल करता, फर्स्ट थिंग। उसके बाद जब वो बच्चा ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो उसके फादर उसके जो फादर होते हैं वो अपने आप को एक लूजर कंसीडर करने लग जाता है वो बच्चा।
तो व्हाट हैपन्स इज जब वो हॉस्पिटल जाते हैं उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसके फादर उस बच्चे को अपने कॉलेज की स्टोरीज बताते हैं कि उनके हॉस्टल में जितने भी बच्चे थे, उनके हॉस्टल में जितने भी बच्चे थे उनको लूजर बुलाया जाता था, क्योंकि वो एक गेम या एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में हमेशा लास्ट आते थे। ठीक है, अब लास्ट आते थे तो क्या हुआ कि उन्होंने बताना चाहा कि वो उनको भी लूजर बुलाया जाता था, और यहाँ उनका बेटा जो बेड पे था, जो हॉस्पिटल के बेड में था, वो अपने आप को लूजर मान चुका था। तो वो ये बताना चाहते थे कि एक लूजर से एक विनर कैसे बना जाता है। एक बहुत अच्छी जर्नी है, एक बहुत अच्छी जर्नी बताते हैं वो अपने उसमें कि सबसे पहले स्ट्रेस का कारण क्या था, कि उसके फादर के कॉलेज के टाइम पे स्ट्रेस का कारण ये था कि उनको लूजर बुलाया जाता था। ठीक है, अब स्ट्रेस आ गया कि हमको क्यों लूजर बुलाते हैं, why the other people call us loser because we are not able to come first in the sports competition। so वहाँ से एक स्ट्रेस आया, आपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया कहाँ से आया। ठीक है, आपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया कहाँ से आया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे कुछ स्टेप्स लेना कि स्ट्रेस भाग जाए, दूर चला जाए, डिशुम हो जाए अपने आप ही। ठीक है, वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत सारी गेम्स खेलने लगे, उन्होंने अपने आप को परफेक्ट किया, और एट द एंड क्या हुआ, वो एक मार्क पीछे थे गेम का कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन जीतने से सिर्फ एक मार्क पीछे थे। अब क्या होता है, यहाँ पे बड़ा अच्छा सा ट्विस्ट आता है कि वो बच्चा जो एक उसके जो फादर होते हैं, वो बाकी सारे उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बाकी सारे गेम जीत लेते हैं, वो आते हैं देखने के लिए कि ये सिर्फ एक लास्ट गेम है, और अगर हमको एक नंबर इस गेम में मिल जाता है तो वी विल बी द विनर, एंड वो लोग आते हैं देर से कि यस हम सारे गेम जीता है, एंड नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, कि अगर आप एक नंबर ले आओगे, सिर्फ एक नंबर ले आओगे, वी विल बी द विनर। तो क्या हुआ, उसके फादर के दिमाग में इनडायरेक्ट स्ट्रेस गया, इनडायरेक्ट प्रेशर गया। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रेशर गया उसके फादर के दिमाग में। गेम खेलते खेलते बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक प्रेशर जाता है उसके फादर के दिमाग में कि अब तो सिर्फ एक मार्क मैं ही लाऊंगा, अब नहीं तो हम तो हार जाएंगे। वो गोल करने का, बास्केट करने का ट्राई करते हैं, उनके जितने भी बास्केट होते हैं पूरे गेम में सब जा रहे होते हैं, लेकिन उनका लास्ट बास्केट क्यों नहीं जाता, ये किसी ने सोचा ही नहीं कि उनका लास्ट बास्केट इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनके माइंड में इनडायरेक्ट प्रेशर चला गया था। इनडायरेक्ट प्रेशर जाने की वजह से ही लॉस्ट द गोल क्योंकि उनके माइंड में इनडायरेक्ट प्रेशर चला गया था। लेकिन उन्होंने वो गेम क्यों खेला था कि वो एक लूजर से एक विनर का टैग मिल जाए, उनको। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड एट द एंड वाज एवरीबॉडी वाज स्क्रीमिंग लाइक H4 उसके हॉस्टल का नाम H4 होता है, एंड एवरीबडी वाज स्क्रीमिंग। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट योर रिजल्ट दैट मेक यू द विनर, इट्स द हार्ड वर्क दैट मेक्स यू द विनर। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं विदाउट कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी वन, अगर उन्होंने अपने आप को कंपेयर भी किया बाकी सारी टीमों से, तो उन्होंने क्यों किया? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक करने के लिए, सिर्फ अपना मेंटल पीस खराब करने के लिए, अपने आप पे काम नहीं करने के लिए, दैट इज वेरी हार्मफुल। So the first step towards reducing stress is take stress as a first step towards your stepping stone. Take stress as a first step towards your success. Man, your video is buffering. Is my video buffering? Is my video okay, everyone? Is my video okay, everyone? I just got a comment कि my video is buffering. Okay. So उसके अब क्या हुआ, उस बच्चे को लगा कि मेरे पापा का भी लूजर का टैग था, एंड नाउ दे गॉट द विनर। उसने सोचा कि आपने ये कैसे किया, तो उसने यही समझाया कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर स्ट्रेस आ जाए तो डिशुम करना है, और डिशुम कैसे करना है आज हम सीखेंगे विद इन 5 minutes कि स्ट्रेस को डिशुम कैसे करना है। एंड इट्स वेरी इजी टू डिशुम द स्ट्रेस, इट्स वेरी इजी, क्योंकि हमको कभी बचपन में सिखाया ही नहीं होता। हमको
कभी बचपन में सिखाया ही नहीं होता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, कंपैरिजन को मैनेज कैसे करना है। इवन हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, इसलिए वो हमको सिखाते ही नहीं है। पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, इसलिए वो हमको सिखाते भी नहीं है। तो आज हम पेरेंट्स के साथ सीखेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी आती है वीडियो, एक छोटी सी आती है वीडियो, सॉरी स्टोरी एक छोटी सी आती है स्टोरी कि एक छोटी सी स्टोरी ये है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी स्टोरी ये, कि एक बार एक शार्क होती है, एक प्रोफेसर होते हैं, वो एक क्लास में जाते हैं, बायोलॉजी के टीचर होते हैं, वो मतलब साइंस के टीचर होते हैं। तो वो एक फिश टैंक लेके आते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक शार्क डाल दी होती है, वहाँ उन्होंने उस फिश टैंक के अंदर एक शार्क डाल दी होती है और उस शार्क के साथ एक छोटी सी फिश डाली होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? उस शार्क के साथ एक छोटी सी फिश डाल दी होती है उन्होंने। तो क्या करती है, शार्क तो खा जाती है फिशेस को, तो शार्क फटाफट जाती है, शूम करके उस फिश को खा लेती है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोफेसर ने क्या किया, सपोज ये आपका फिश टैंक है, अब इसके बीच में एक ग्लास का बाउंड्री लगा दिया, एक ग्लास का टुकड़ा लगा दिया, जिससे जो एक्वेरियम था, जो टैंक था, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब उन्होंने क्या किया, एक तरफ डाली शार्क, एक तरफ डाली छोटी वाली फिश। तो अब लेकिन शार्क को तो दिखेगा ना तो उस फिश का टैंक से, तो क्योंकि कांच का है, ऐसा तो नहीं है कोई ब्लैक पेपर लगा दिया, कांच का है। तो वो ट्राई कर रही थी देखने का, उसको वो फटाफट जैसे उसने देखा छोटी सी फिश है, शूम करके गई, लेकिन क्या हुआ, उसको डिशुम हो गया, उसको लग गई, नाक पे लग गई, उसके मुंह पे लग गई। अगेन शी ट्राइड, अगेन जो शार्क थी वो कम एफर्ट लगाने लगी अपना फिश, छोटी फिश को पाने के लिए। अब 7 दिन बाद ऐसा एक सीन आया कि उन्होंने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने वो बीच का जो पार्टीशन था वो हटा दिया, उन्होंने वो पार्टीशन हटा दिया और ये पता चला कि जो शार्क थी वो जा गई ही नहीं छोटी फिश के पास, क्योंकि उसके माइंड में ये वाली बात चली गई कि यहाँ तो कुछ कांच का है और मैं जाऊंगी तो मेरे को लग जाएगी। और इससे हम एक बात सीखते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम साइकिल चलाने जाते हैं। ठीक है, हम साइकिल चलाने जाते हैं, हम साइकिल लेके निकले बहुत खुशी से, टैं 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 करके, लेकिन हम गिर गए, हम रोते रोते घर आ गए। दूसरी बार निकले, दूसरी बार फिर गिर के वापस घर आ गए, तीसरी बार गिर के वापस घर आ गए। और हमने एक अजम्पशन बना ली कि हम लोग तो कभी साइकिल चला ही नहीं सकते, इसलिए हम फिर से दोबारा ट्राई नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप सोचने लगे, जब फिश ने सोच लिया, शार्क ने सोच लिया कि अब तो मुझे वो फिश मिल ही नहीं सकती, तभी उसको मिलनी थी। जब आपने ये बात सोच ली होगी कि अब तो मैं साइकिल चला ही नहीं सकता, दैट वॉज द वेरी मोमेंट कि आप जाते बाहर, साइकिल चलाते और आप चला लेते। माइंड माई वर्ड्स, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करके देख लीजिए। कभी भी नेगेटिव अपने दिमाग से बातें नहीं करनी, कभी नेगेटिव बातें नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। किसी टाइप का स्ट्रेस लेके नहीं आना, किसी टाइप का अजम्पशन नहीं बनाना। यू शुड ऑलवेज ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, अगर छोटा बच्चा होता है वो चलते टाइम कितनी बारी गिरता है, बहुत बार गिरता है, लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं ना, वो तब भी चल के दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो गिर गिर के सीखता है। तभी आपको क्या लगता है कि जो हमारा फोन है वो एक दिन में बन गया था, उसके लिए भी बहुत ट्रायल्स हुए। बहुत ट्रायल्स होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया, लोगों ने बहुत बोला कि आप तो फ़ोन बना नहीं सकते, लेकिन एक दिन ऐसा आया, अगर वो स्ट्रेस ले लेते अपने दिमाग में कि मैं नहीं बना सकता, तो होता ही नहीं। सो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आपको सबसे पहले अपने आप को ये नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक इंसान मून तक जा सकता है तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है। अर्थ से बाहर जा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि आप डांस नहीं कर सकते, आप सिंगिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बट वॉट आई विल से टू यू, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच यू थिंक इन योर माइंड। अगर आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ से, अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, पैशनेट है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस को अपने दिमाग में नहीं आने देना। अब
अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे स्ट्रेस से डिशुम डिशुम कैसे किया जाता है। स्ट्रेस से डिशुम डिशुम कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेस। एंड अगर आपको रीजन नहीं पता होगा, अगर आपको रीजन नहीं पता होगा तो आप उसके सोल्यूशन पे कैसे काम करेंगे। यू शुड नो द रीजन बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम एंड देन ओनली यू कैन फाइंड द की टू इट। अब की क्या है, सोल्यूशन है। हमेशा अगर भगवान जी अगर ताला बनाता है या कोई कंपनी ताला बनाती है तो उसके साथ चाबी भी बनाती है। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, कहीं से आ रहा है, उसका सोल्यूशन भी आपके सामने ही है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द करेक्ट एक्शन, यू हैव टू डू द करेक्ट एक्शन। सो वी विल सी हाउ यू कैन डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू शुड नो आपका स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्ट्रेस आ रहा है, सपोज आपकी क्लास में किसी से कंपैरिजन करते हुए कि मेरे उससे ज़्यादा उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए, उसकी मेरे से सुंदर ड्राइंग कैसे बन गई। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। कंपैरिजन से बड़ा कोई स्ट्रेस नहीं होता। सारे पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर ना करें। प्लीज़ अपने बच्चों पे ये इनडायरेक्ट प्रेशर ना डालें कि अगर वो कुछ करेंगे तो आप उन्हें कुछ दिलाएंगे। अगर आप वो कुछ करेंगे, अगर वो तब आप उन्हें कुछ दिलाएंगे, आप उन्हें वो दिला दीजिए एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज कि आपका बच्चा ये सोचेगा माई पेरेंट इज डूइंग सो मच फॉर मी सो आई कैन डू एटलीस्ट समथिंग फॉर देम। दैट विल बी अ पॉजिटिव चेंज इन योर चाइल्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, सपोज मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊँ कि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी कैसे है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि उसकी ड्राइंग इसलिए अच्छी है क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है अपनी ड्राइंग पे। मैंने कभी ये नहीं सोचा, ना मुझे कभी सिखाया गया कि वो एक इंसान मुझसे उस चीज़ में इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने उसमें हार्ड वर्क किया है, क्योंकि उसने उस चीज़ में प्रैक्टिस करी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, stop comparing yourself and then think the thought कि वो इसलिए आपसे अच्छा है क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है। थर्ड, अब आपको अगर उसके बराबर आना है, if you want to be somewhat like, अगर आपको किसी के बराबर आना है, आप चाहते हो कि आपका टैलेंट उतना ही हो, मतलब उसके आसपास भी हो, तो you should start doing hard work। कल भी मैंने बताया था कि एक बच्चे के मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आते हैं, एक बच्चे के इसलिए कम आते हैं क्योंकि जब आप सो रहे थे तब वो बच्चा सम सॉल्व कर रहा था। याद आया एग्जाम्पल? तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है माय चिल्ड्रन कि यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड नाउ कम्स वन थिंग दैट आई वांट ऑल द पेरेंट्स टू डू विद देयर किड्स इज कि आप थोड़ा इनके साथ बैठ के, द एक्टिविटी आई वांट द पेरेंट्स टू डू टुडे इज कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके स्ट्रेस बस्टर लिखिए। हर एक इंसान का कोई ना कोई स्ट्रेस बस्टर इसलिए होता है, मेरा भी स्ट्रेस बस्टर है। व्हाट इज अ स्ट्रेस बस्टर? स्ट्रेस बस्टर ये होता है कि सपोज मैं आज स्ट्रेस में हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो हमें बचपन में ये बोला जाता है ना, यू शुड डेवलप अ हॉबी। हमारे पेरेंट्स हमको किसी डांस क्लास में भेज देते हैं, किसी सिंगिंग क्लास में भेज देते हैं, किसी स्पोर्ट्स में भेज देते हैं। वो क्यों भेजते हैं? उसके पीछे एक रीज़न होता है कि बचपन से ही किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दो, बचपन से ही डाल दो, बड़े होके मत डालो। क्योंकि अगर बचपन से एक बच्चा स्पोर्ट्स करने लग जाएगा, इफ यू बी डूइंग द स्पोर्ट्स एवरी डे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बच्चा उस स्पोर्ट्स को या उस एक्टिविटी को लाइक करने लग जाएगा। और अगर किसी को कभी स्ट्रेस आता भी है, so the child can do that activity and he or she can feel good again, क्योंकि वो उसमें अच्छा है, उसको ये फीलिंग आएगी कि आई एम वेरी गुड एट दिस, एंड उसके अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा। आई होप सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर निकाल के, 10 मिनट निकाल के, यू कैन हैव अ 1-to-1 कन्वर्सेशन विद योर किड, 1-to-1 कन्वर्सेशन विद योर किड कि बेटा आपको क्या अच्छा लगता है, आपको दिल से करना क्या अच्छा लगता है। तो ऐसा एक टाइम आएगा जब आपका बच्चा स्ट्रेस में होगा आपका बच्चा, तो टेल देम टू डू दैट एक्टिविटी,
पेरेंट्स से काउंसलिंग करना इज वन थिंग. सपोज पेरेंट बिजी है, दे शुड हैव अ प्लान बी. दे शुड हैव अ प्लान बी टू नो where can they go और what can they do कि उनका स्ट्रेस कम हो जाए. ठीक है? ओके एवरीवन, समझ आया सबको? उसके बाद अभी आगे बढ़ते हैं. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आज. मैम एम आई राइट? आपका क्या था पूनम? एक सेकेंड मैं देख लूं एक बार. Don't compare yourself with others, just compare about yesterday with your today. If there is an improvement, that's your achievement. Very true पूनम, आपने बहुत सही बात बोली. Thanks सिद्धि. मैं do you think good? I always think good. I always think good. We should do some meditation also. Meditation करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन अगर आप जिसको आती हो पहले उससे सीखें. मेडिटेशन अगर आप इंटरनेट से सीखेंगे तो आप कभी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे. यू शुड हैव समवन फ्रॉम whom you should learn how to meditate. From whom you should learn how to meditate, क्योंकि अगर आपका मेडिटेशन में कुछ गड़बड़ हो गया सो इट विल कॉज अ बिट प्रॉब्लम. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, कभी भी लॉकडाउन खत्म हो और सब चीज़ें जब सेफ हो जाए, तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को किसी मेडिटेशन क्लास में डालिए, क्योंकि बच्चे सीखेंगे दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देयर माइंड एंड सोल इन बैलेंस. आजकल के रैट रेस में बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनको एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, दे थिंक दैट दिस लाइफ इज वर्थलेस. बट दिस लाइफ इज प्राइसलेस. I would rather say life is not a destination. It's a journey that you have to travel, and you learn a lot in your journey. आप हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में आता है, या तो एक लेसन लेके आता है, या तो आपको कुछ सिखाने आता है, या फिर आपके लिए कुछ अच्छा लेके आता है. कभी एक इंसान आपके साथ कुछ बुरा भी करे तो उसको कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक लेसन लेके गया है. कभी हम ये भी स्ट्रेस लेते हैं, ये भी तो एक स्ट्रेस है कि मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, शी इंसल्टेड मी इन द होल क्लास, मैम इंसल्टेड मी इन द होल क्लास, दैट मैम इज नॉट गुड, आई एम नॉट गोना स्टडी. मैं कल मम्मी पापा को लेके आऊँगा या आऊँगी, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूँगी. लेकिन आपने ये तो कभी नहीं सोचा कि यू शुड ऑल्सो वर्क हेयर. अगर टीचर ने आपको कुछ बोल भी दिया है, टेक इट एज समथिंग कि वो टीचर कुछ सिखाना चाह रही हो आपको. टीचर का कोई मोटिव होगा उसके पीछे. There is a motive behind everything that happens. इस कोविड के पीछे भी भगवान जी का बहुत बड़ा एक लेसन है कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो. हमने कभी आज तक अपने पेड़ों के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला था. हमने कभी बोला था अपने ट्रीज के लिए थैंक यू? नहीं ना. सन के लिए थैंक यू बोला था? नहीं बोला था. मून के लिए बोला था? नहीं बोला था. तो कोविड भी एक वही है, हमें अपने घर की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी, हमें घर में रहना ही नहीं अच्छा लगता था. सो कोविड एक लेसन लेके आया है. हम उसको सोच रहे कि हमें घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन हम कोविड से पहले कितना टाइम घर में स्पेंड कर देते. हम जैसे ही कहीं घर से आ रहे थे, हम ट्यूशन जा रहे थे, हम इस क्लास में जा रहे थे, कहीं घूमने चले जाते थे, हम तो घर की इंपॉर्टेंस ही भूल गए थे. आजकल लोगों को ये भी स्ट्रेस है कि मुझे घर पे रहना पड़ रहा है. दैट इज नॉट अ स्ट्रेस. टेक इट एज अ ब्लेसिंग. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है. तो दे आर ऑन देयर रोड्स, जो वो वेट करते हैं कि कोई आके उनको खाना दे जाए. एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास खाना है, हमारे मम्मी पापा हमको सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं. अगर आपका मम्मी पापा आपसे गुस्सा भी हो जाते तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं. उनके गुस्से में भी एक रीजन होगा कि आपने कुछ गलती करी होगी, और उनके गुस्से से दे वांट यू टू रियलाइज दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. ठीक है, समझ आया? स्ट्रेस नहीं लेने का, एकदम चिल रहने का. ठीक है, से यस और नो. आज से कौन स्ट्रेस लेगा? जो स्ट्रेस लेगा उसकी पिटाई. स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना. ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है हमको. ठीक है,
मिस्ट्री बॉक्स की तरफ बढ़े, मिस्ट्री बॉक्स की तरफ बढ़े या कुछ और लेसन चाहिए आज के लिए? To always be positive. Yes, you should always be positive. Ma'am, your voice is not clear. Everyone, is my voice clear? Please comment. I like your session, ma'am. Thanks, Kabita. बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, 1% स्ट्रेस भी नहीं लेना। और पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगी आज का जो मिस्ट्री बॉक्स है दैट विल ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन एवरीबडीज लाइफ। एंड आई एक्चुअली वांट, आई ट्रूली वांट, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उस मिस्ट्री बॉक्स को रोज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, रोज अपने बच्चों के साथ उस चीज को इम्प्लीमेंट करिएगा जो भी आज का मिस्ट्री बॉक्स है, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफस्टाइल। आजकल ऐसा भी बहुत है, पेरेंट्स को भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि फॉर देयर जॉब और फॉर देयर बिजनेस, बट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। यू नेवर नो कि इस पैंडेमिक के बाद what boom can be there in the economy or what transformation can be there in the economy। कुछ ऐसा हो जाए कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वो एकदम बूम हो जाए। So always think like there is something waiting for you that is very positive and can change your life in a positive way। ठीक है मैम, आज का मिस्ट्री बॉक्स नहीं, अच्छा आज मिस्ट्री बॉक्स नहीं चाहिए, आज का मिस्ट्री बॉक्स नहीं चाहिए किसी को, फिर नहीं देते, नहीं चाहिए मिस्ट्री बॉक्स। ग्रेट सेशन, थैंक्स हिमांशी, जसबीर सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू। आज का मिस्ट्री बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर मैं भी बताऊंगी कि मैं अपना स्ट्रेस कैसे भगाती हूँ। मैंने ये तो बता दिया कि स्ट्रेस भगाते कैसे, लेकिन ये भी तो जानना है कि मैं अपना स्ट्रेस कैसे भगाती हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ ना, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी स्ट्रेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, नो मैम चाहिए, चलो बताते हैं अभी। हाँ जी, एक सेकेंड बस, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा पानी पी रही हूँ। 2 दिन बहुत बोला ना, तो आज थोड़ा गला ठीक नहीं है। नो मैम चाहिए, मैं तो देना चाहती हूँ। किसी ने लिख दिया कि नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पूछ लिया कि चाहिए कि नहीं चाहिए। सो लेट्स गो टू टुडेज मिस्ट्री बॉक्स। टन सो आज का मिस्ट्री बॉक्स है, क्या है मैं ही भूल गई कि आज का मिस्ट्री बॉक्स क्या है। अब क्या करें, मैम ही भूल गई कि आज का मिस्ट्री बॉक्स क्या है, तो अब क्या करें, मैम ही भूल गई। चलो बताते हैं मिस्ट्री बॉक्स क्या है। सब जितने बच्चे भी बैठे हैं कमेंट करना छोड़ के टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल करो, अभी इनहेल करो, एक्सहेल कर दो, फिर से एक इनहेल करो, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ा काम लगा ना, थोड़ा शांति लगी माइंड में, इतनी डीप ब्रेथ के बाद ही शांति लगी थोड़ी सी। मुझे याद है आज का मिस्ट्री बॉक्स, मैं मजे ले रही थी आपसे। I was seeing that are you excited, are my kids excited to know what is the mystery box for the day। लेकिन अभी आपने जो 3 डीप ब्रेथ ली, आपको कैसा लगा मुझे पहले ये बताओ, अच्छा लगा ना? तो आज का मिस्ट्री बॉक्स है डीप ब्रीदिंग है आज का मिस्ट्री बॉक्स। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का टू calm our mind is the only solution
और यू कैन से इज द बेस्ट सोल्यूशन टू काम योर माइंड। अगर आपका दिमाग सोचना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा तो स्ट्रेस अपने आप डिशुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। डीप ब्रीदिंग, आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल। अब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, इसका भी एक प्रोसीजर है। अब हम कैसे करेंगे डीप ब्रीदिंग? आपको अपने दोनों हैंड लेने हैं, दोनों हैंड ऐसे लेके अपने टमी पे लगाना है। अपने टमी पे रखिए दोनों हाथ, बच्चों सारे, ठीक है? अपने दोनों हाथ अपने टमी पे रखेंगे, ठीक है? और चेस्ट से ब्रीदिंग ना करके अपने पेट से ब्रीदिंग करेंगे। जब आप नाक से सांस लेंगे, जब आप नाक से सांस लेंगे तो आपका टमी थोड़ा बाहर जाना चाहिए, मतलब एक्सपैंड होना चाहिए। और जब आपको अपनी सांस मुंह से बाहर छोड़नी है, मुंह से बाहर निकालनी है, एक्सहेल यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर माउथ। जब करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन योर लोअर एब्डोमेन, ठीक है? एंड यू हैव टू ओनली फील, आईज क्लोज करके आपको ये फील करना है कि मेरा टमी कैसे बाहर आ रहा है, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, कैसे अंदर जा रहा है। एंड आई ट्रूली वांट कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आज सोने से पहले एक्टिविटी करें 10 मिनट के लिए। कोई भी एक ओम का जाप लगा ले, यूट्यूब पे बहुत सारे ओम के जाप होते हैं। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का टाइम निकालें, एक ओम का जाप लगाएं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं 10 मिनट के लिए। डू दिस बिफोर यू गो टू बेड। 10 मिनट के लिए आइज क्लोज करके अपने बच्चों के साथ सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए। अगर कहीं माइंड इधर उधर भी जाता है, फिर से पेट अपने टमी की तरफ ध्यान ले आए एंड यू विल सी दैट देयर इज। और उस 10 मिनट के बाद यू विल फील कि आपका माइंड एकदम काम हो गया है, एकदम काम। मैं तो बोलते बोलते ही काम हो गई मैं तो बोलते बोलते ही काम हो गई। ऐसा भी होता है। दिस इज ऑल्सो साउंड कामिंग योर माइंड। देर आर मेनी टेक्निक्स। तो रोज मेरा सेशन देखो, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज का मिस्ट्री बॉक्स है टू डू डीप ब्रीदिंग, ठीक है? मैंने बताया कैसे करनी है, ओके? और अब कोई ये जानना चाहेगा मैं अपना स्ट्रेस कैसे हटाती हूँ। कभी कभी मुझे भी स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा फीलिंग वेरी वेल, वाओ मेरे को इतना अच्छा, ओके मैम आई विल डू दिस विद माई पेरेंट्स। बिल्कुल आपको अपने पेरेंट्स के साथ करना है, बिल्कुल। और पेरेंट्स के साथ अपनी आज स्ट्रेस बस्टर लिस्ट भी बनानी है, ताकि आपको पता चले कि व्हाट आर यू गुड एट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस आता है तो डू दैट एक्टिविटी एंड स्ट्रेस डिशुम कर देंगे हम, ऐसे कर देंगे, ऐसे, ठीक है? अब जानना है कि अब आपको ये जानना है कि मैं अपना स्ट्रेस कैसे हटाती हूँ। हाँ चलो मैं बताती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी कभी कभी स्ट्रेस ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेशंस को भी मैनेज करना होता है, मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, मुझे अपना कॉलेज का काम भी मैनेज करना होता है, मुझे और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। मम्मी पापा के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, सोशल मीडिया भी मैनेज करनी होती है, क्योंकि मैं अपनी जितने सेशंस होते हैं मैं उनको भी अपने सोशल मीडिया में डालती रहती हूँ, ठीक है ना? ताकि लोग देखें, लोगों को भी मोटिवेशन मिले, तो डालना पड़ता है, ठीक है? और मैं एक NGO का भी पार्ट हूँ, द राइजिंग, उसके साथ भी मुझे देखना पड़ता है, वहाँ का थोड़ा बहुत काम भी मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं एक दिन में करने के लिए। तो मैं अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हूँ? सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग, जो मैंने आपको आज एक्टिविटी दी है, वो है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर। उसके बाद जैसे अब आपको 3 दिन में ये पता चल गया होगा कि मैम को बोलना बड़ा पसंद है, तो आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फॉर माई यूट्यूब। मैं फिर अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने लग जाती हूँ। तो फिर बड़ा मज़ा आता है यूट्यूब वीडियोस बनाने में मुझे। मेरे यूट्यूब का नाम है अनलीश योर पैशन। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में 2-3 लोग लिख रहे हैं। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने लग जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट डालती हूँ, बहुत सब कुछ डालती हूँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि बात कैसे करते हैं, अच्छे से बोलते कैसे हैं, अच्छे से सुनते कैसे हैं, अच्छे से खड़े कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ मैं वहाँ पर। तो फिर मैं कंटेंट लिखना शुरू कर देती हूँ, मैं बुक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ती हूँ। मैम अपने एजुकेशन के बारे में बताइए प्लीज़।
मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो वहाँ पे फिर मैं बुक पढ़ने लग जाती हूँ कोई थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ ली, मेरे को अच्छा लगा, एकदम पॉजिटिव फीलिंग आ गई बुक पढ़ के। उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मी को एक झप्पी दे देती हूँ, अपनी मम्मी को एक झप्पी देती हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरे मम्मी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Ma'am, if you are studying in college, so from where you know all these things about personality development? I am a certified personality development and public speaker coach and mentor. So, इसलिए मुझे पता है। मैं बुक पढ़ने लगती हूँ, फिर मैं अपनी मम्मी को एक कस के झप्पी दे देती हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने पापा से बात कर लेती हूँ। मेरे पापा को बहुत नॉलेज है, मेरे पापा को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता है, तो थोड़ी देर उनसे बात करती हूँ, थोड़ा इधर उधर की बातें हो जाती है, उनसे कुछ नया सीखने को भी मिलता है मुझे अपने पापा से। तो वहाँ से जाके फिर मेरा माइंड एकदम वो हो जाता है कि मैं अपने पापा को जब देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है, तो मुझे इनके जैसा बनना है, तो फिर मेरे को अपना स्ट्रेस भगाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, विदिशा हिमांशी से बात करती हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। मेरे मेंटोर मिस्टर तरुण शर्मा है, मैं उनसे बात करती हूँ। और फिर मैं अपने एनजीओ वाले बच्चों के साथ कभी कभी चली जाती हूँ उनके पास, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, वो खेलते हैं बहुत। उनके लिए एक टॉफ़ी ले जाओ, वो इतना सारा प्यार दे देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। कभी कभी फिर मैं या तो मैं कोई अच्छी सी मूवी देख लेती हूँ, तो मेरे को मूवी देख के भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैं ऐसी वैसी कोई मूवी नहीं देखती, मैं देखती हूँ बच्चों वाली मूवी, एनिमेटेड मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। यस, द पेरेंट्स आर ऑलवेज आर मोटिवेटर बेस्ट फ्रेंड। आपका फर्स्ट गुरु आपके पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी हम उन्हें भूल जाते हैं, तो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो आपके सबसे बड़े मोटिवेटर है। सो ये है मेरे कुछ स्ट्रेस बस्टर, और ये कुछ इसलिए मैं कह रही हूँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके स्ट्रेस बस्टर क्या है। आज अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, लिखिए क्या आपको स्ट्रेस देता है और कैसे आप उनसे ओवरकम कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा को एक कस के झप्पी दीजिएगा, एकदम मस्त वाली झप्पी देना, उनके साथ बैठ के डिनर करना बहुत अच्छा, मम्मी को बोलना कुछ अच्छा सा बना दो, बहुत अच्छा सा बना दो, साथ में डिनर करेंगे एकदम। रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करना, 10 मिनट की ओम का जाप लगा के यूट्यूब पे कोई भी ओम का जाप लगा लेना और 10 मिनट के लिए आइज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग करना, फिर सो जाना। कल सुबह उठ के भी आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। एंड यस, सो आज का सेशन खत्म हो गया। मैम प्लीज टेल, आपने क्या पूछा था? अगर कोई क्वेश्चन है मैम, आपके 10th-12th में कितने मार्क्स आए थे? अगर मैं यहाँ पे अपने 10th-12th के मार्क्स बता दूँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ती हूँ और सबसे रिप्यूटेड कोर्स करती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बताऊँगी कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि बच्चे फिर स्ट्रेस लेने लग जाएंगे कि दीदी के इतने अच्छे मार्क्स आए थे। थोड़ा सा वो एक स्ट्रेस आ जाएगा बच्चों में कि दीदी के इतने मार्क्स कैसे आए, मेरे इतने नहीं आए। अगर कोई 11th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा या कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसके एग्जाम रह गए होंगे, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई लव टुडे सेशन एंड बाय, छुट्टी एवरीवन, विल मीट यू टुमारो। टिल देन अब अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, अपने सबको थैंक यू बोलिए और टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। एंड अगर कोई कल मिलते हैं शाम को 4 बजे। बाय एवरीवन।